پچھلی قسط میں ہم نے جانا دوستوں، انسا کی غیر معمولی قوتوں نے پورے مدرسے کو حیرت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کا راز پروفیسر مصطفیٰ اور عمیر صاحب تک جا پہنچا۔ ایک رات شہریار اسے اپنی دنیا دکھانے آیا، جہاں انسا نے جانا کہ اس کی ماں انسان نہیں بلکہ ایک نیک جنات کے خاندان سے تھیں۔ سحران نے انسا کو اس جناتی جہان تک پہنچایا، جہاں سب کچھ خواب سا مگر حقیقی تھا۔ اب انسا دو دنیاؤں کے بیچ کھڑی ہے، ایک انسانوں کی اور دوسری اس کی اصل جناتی دنیا ہے۔ مدرسے کی شامیں اب انسا کے لیے پہلے جیسی نہ رہیں۔ شہریار کی باتیں، اس کی نگاہوں کی روشنی اور اس کا پراسرار سا سکون، یہ سب انسا کے دل میں ایک انجان سا جذبہ جگانے لگے تھے، اور چاہے جتنا بھی خود کو روکنے کی کوشش کرتی، مگر شہریار کے قریب آ کر وہ اپنی کمزوری ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک رات شہریار نے انسا کو آہستہ سے کہا، انسا، میں تمہیں پھر سے اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، وہ دنیا جس کا حصہ تم خود بھی ہو، چاہے تمہیں یقین آئے یا نہ آئے۔ انسا کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحہ بھر کو اسے عمیر صاحب اور پروفیسر مصطفیٰ کی نصیحتیں یاد آئیں، مگر شہریار کی آنکھوں میں چھپی کشش نے ہر خوف کو مات دے دی۔ وہ اس کے ساتھ پھر سے اس روشنی بھری سرنگ میں داخل ہوئی، اور اگلے ہی لمحے ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی۔ آسمان پر جھلملاتے ہوئے ایسے رنگین بادل انسانوں نے کبھی نہ دیکھے ہوں، درختوں سے نکلتی مدھر سرگوشیاں اور پانی کے چشمے جو بجائے بہنے کے ہوا میں معلق تھے۔ انسا نے حیران ہو کر کہا، یہ سب عقل سے آگے کے مناظر ہیں، کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ شہریار مسکرایا، یہی ہماری دنیا ہے، جو تمہارے لیے بھی اب خواب نہیں رہی کہ ایک حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی روح جیسے ہلکی ہو گئی ہو، اور وہ اس مقام پر ہے جہاں فاصلے اور وقت کی قید نہیں ہوتی۔ شہریار نے دھیرے سے کہا، انسا، تم میری دنیا میں قدم رکھ چکی ہو، مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم میرا حصہ بننا چاہو گی؟ انسا کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ دو جہانوں کے بیچ ایک رشتہ بن چکی ہے، اور شہریار اس راز کی کنجی ہے۔ رات کے خواب جیسے لمحے ختم ہوئے تو انسا کا دل بے چین تھا۔ مدرسے کی فضاؤں میں بیٹھے بیٹھے اسے بار بار اپنے والد کی نصیحتیں یاد آئیں، انسا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر میٹھا لفظ سچائی نہیں ہوتا۔ انسا نے خود سے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے شہریار کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، یہ راستہ شاید مجھے کہیں اور لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوگی۔ اگلے دن تیز دھوپ تھی۔ وہ اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اکیلی چلتی ہوئی اس خفیہ سرنگ کے قریب پہنچی جہاں کل رات وہ شہریار کے ساتھ گزری تھی۔ وہاں کا منظر بالکل بدل چکا تھا، نہ کوئی روشنی تھی، نہ جھلملاتے بادل، نہ بہتے چشمے۔ یہ دن کی روشنی تھی، وہی سورج، وہی درخت، وہی عام سی ہوا، جیسے کل رات کا خواب محض ایک وہم تھا۔ انسا لمحہ بھر کو کھڑی رہی، پھر اس کے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ میں گہری مایوسی اتر آئی۔ کیا میں نے سب کچھ سوچا تھا؟ کیا وہ دنیا حقیقت میں تھی یا بس میری خواہش تھی؟ آنکھوں میں نمی لیے مدرسے کی طرف لوٹ آئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال اب بھی گونج رہا تھا، اگر وہ سب خواب تھا تو شہریار کی مسکراہٹ اتنی حقیقی کیوں تھی؟ عشاء کی نماز کے بعد انسا نے جائے نماز لپیٹا اور گہری سانس لی۔ سارا دن اس کے دل پر بوجھ کی طرح گزرا، کبھی شہریار کی باتیں یاد آتی، کبھی پروفیسر مصطفیٰ کے الفاظ گونجتے، اور کبھی والد کی نصیحت دل پر کانٹے کی طرح چبھتی۔ بہت ہو گیا، یہ سب میرا وہم ہے، شاید کوئی ذہنی خلل ہے، کوئی دھوکہ ہے، جو کچھ میں نے رات دیکھا وہ محض خواب تھا، اور جو شہریار کہتا ہے وہ سب فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس مدرسے میں مزید نہیں رہے گی، وہ کل ہی اپنے ابو کے پاس واپس چلی جائے گی، وہی میری پناہ ہے، شاید وہ مجھے اس سب الجھن سے نکال سکیں گے۔ انسا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، کسی ایسی دنیا میں قدم رکھ کے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، دل میں خوف اور مایوسی لیے، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ فیصلہ تو اس نے کر لیا، لیکن تقدیر نے ابھی اس کے لیے فیصلہ کرنا باقی رکھا ہے۔ دیر ہو چکی تھی۔ انسا نے آنکھیں بند کی تو وہ تھکن اور غم کی وجہ سے سو گئی، لیکن یہ نیند عام نیند نہ تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو آواز دی ہو۔ اچانک اس نے خود کو ایک وسیع باغ میں پایا جہاں ہوا میں خوشبو رچی ہوئی تھی اور آسمان پر چاند کی روشنی عجیب سنہری رنگ بکھیر رہی تھی۔ سامنے آسیہ خالہ کھڑی تھی، وہی نرم مسکراہٹ، وہی پرسکون آنکھیں، مگر ان کے ارد گرد ایک ہلکی روشنی کا ہالہ تھا۔ انسا نے گھبرا کر کہا، خالہ، آپ، یہ خواب ہے نا؟
आसिया खाला करीब आई और इसके सर पर हाथ रखा। अंसा बेटी, ख्वाब और हकीकत के बीच की दीवार इतनी मजबूत नहीं होती, तुम समझती हो। तुम जितना भागोगी इतना ही इस दुनिया की कशिश तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। अंसा की आवाज़ लरस रही थी। मैंने सोच लिया है खाला, मैं अब्बू के पास जा रही हूँ। मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब मेरे दिमाग का खलल है, एक वहम है। खाला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह वहम नहीं, तुम्हारी हकीकत है। तुम अपनी माँ की बेटी हो और वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अपनी असल से भागकर तुम कभी सुकून नहीं पा सकोगी। लेकिन खाला, मैं डरती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और फरेब क्या है। आसिया खाला ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खौफ अंधेरा है अंसा, और तुम्हें रोशनी बनना है। याद रखो, सच्चाई से भागना तुम्हें मज़ीद कमज़ोर करेगा। अपनी असल को कबूल करो, क्योंकि ये तुम्हारी तकदीर है। ना कहकर आसिया खाला की शबीह मद्धम होने लगी। अंसा ने हाथ बढ़ाया मगर वो दूर होती गई। अचानक बाग की रोशनी बुझ गई और अंसा चौंक कर जाग उठी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और कानों में खाला की आवाज़ गूंज रही थी, अपनी असल को कबूल करो। वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। किसी बेचैनी ने घेर रखा था इसे। शहयार न जाने कब से खड़ा इसके मासूम और मुस्तरिब चेहरे को देख रहा था। वो चाहकर भी अंसा की परेशानी और उलझन को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन वो अंसा को इस तरह मुस्तरिब भी नहीं देख पा रहा था। अचानक अंसा की नज़र उस पर पड़ी तो वो उठ बैठी। अच्छा हुआ तुम आ गए शहयार, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अंसा की आंखों में बेचैनी थी। शहयार की तरफ देखती रही जैसे किसी गहरी गुत्थी को सुलझाना चाहती हो। यार, इसकी आवाज़ लरस रही थी। ये सब क्या है? तुम और तुम्हारी वो दुनिया। दिन की रोशनी में तो वहाँ कुछ नहीं था, न सुरंग, न वो रोशनी, न वो जगमगाते कुमकुमे। आखिर ये माजरा क्या है? तुम हकीकत हो या मेरा कोई वहम, कोई फरेब? यार चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी निगाहें अंसा की आंखों में गुम हो गईं। फिर वो धीरे से बोला, अंसा, मैं फरेब नहीं हूँ, मैं हकीकत हूँ। एक ऐसी हकीकत जिसे इस दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। कि रोशनी में तुमने जो कुछ देखा वो आम इंसानों की आंखों के लिए है, मगर रात का वक्त और वो सुरंग, वो सब एक पर्दा है, एक दरवाज़ा है। जब तुमने पहली बार मेरा साथ दिया, तुमने वो दरवाज़ा पार कर लिया था। कि आंखों में अजीब सी गहराई थी। हमारा जहान दिन की रोशनी में छुप जाता है। वो सुरंग और वो माहौल तुम्हें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो दुनिया रोशनी के साथ छुप जाती है। वो सिर्फ रात के पर्दे में तुम्हें दिखाई देंगे, सिर्फ उन्हें जो देखने की सलाहियत रखते हैं। अंसा की सांसें भारी होने लगीं। तो ये सब हकीकत है? शहयार इसके करीब आकर इसके हाथ थाम लिए। हाँ अंसा, यह हकीकत है और तुम इस हकीकत का हिस्सा बन चुकी हो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम इस दुनिया को देख सकती हो जैसे तुम्हारी माँ देखती थी। अंसा की आंखों में हैरत और खौफ की मिली जुली रोशनी थी। इसके दिल की धड़कन शहयार के करीब होने से और तेज़ हो गई थी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे हैं। ये भी मालूम नहीं कि तुम वाकई मेरे सामने हो या मेरा कोई वहम है। कि आंखों में नमी भर आई। वो हिचकिचाते हुए बोली, शहयार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। शहयार ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। क्या बात है अंसा? अंसा ने नज़रें झुका लीं जैसे अपने दिल की गहराई से कोई राज निकालने जा रही हो। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ ताकतें जो आम इंसानों में नहीं होती। मैं महसूस करती हूँ कि मैं दूसरों के दिल पढ़ सकती हूँ, इनके माजी और हाल देख सकती हूँ, यहाँ तक कि कभी कभी मुस्तकबिल भी जान लेती हूँ, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर पाती। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो रही हूँ, जैसे ये सब मेरा वहम है। मैं ख़ुद को समझाती हूँ कि ये सब ख्यालात हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में जानती हूँ कि ये वहम नहीं है, हकीकत है। यार के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ती से बोला, अंसा, ये वहम नहीं है, ये तुम्हारी असल है। ये वो रोशनी है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रही है, तुम्हारी माँ की मीरास और तुम्हारा मुकद्दर। तुम जितना इनकार करोगी, ये ताकतें इतनी ही तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगी। अंसा की आंखों में खौफ और सवाल एक साथ झलकने लगे। लेकिन अगर यह हकीकत है तो मैं इन सब का क्या करूं? मैं तो खुद अपने अंदर से डर रही हूं। शहयार ने अंसा के हाथ मजबूती से थाम लिए। अंसा, डरना तुम्हारी कमज़ोरी है, मगर ये ताकत तुम्हारा सहारा बन सकती है। तुम्हें बस ये फ़ैसला करना है कि इन ताकतों को अपने अंधेरे में इस्तेमाल करना है या रोशनी के लिए। तुम अपने अंदर खौफ पर काबू पाकर दुनिया के अंधेरों का मुकाबला कर सकती हो। अंसा ने इसकी आंखों में झांका, जैसे पहली बार अपनी असल को कबूल करने के दहाने पर हो। फ़िज़ा में एक अनजानी ताकत का शोर था। अंसा अपने कमरे में बैठी तिलावत कर रही थी कि अचानक दरो दीवार लरसने लगे।
रोशनी मध्यम पड़ गई और कमरे में एक साया उभरा, काला, बोझल और शैतानी। साया करीब आता गया। अंसा के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। तू अब हमारी दुनिया से बच नहीं सकती अंसा, एक भारी आवाज़ गूंजी। अंसा के जिस्म से पसीना बह निकला, मगर दिल में खुदा के नाम के बाद एक ही नाम था, शहयार। लबों से बेख्तियार निकला। इसी लम्हे हवा में एक रोशनी का दायरा बना और शहयार ज़ाहिर हुआ। उसकी आंखों में नीला नूर और हाथों से बिजली की मानंद रोशनी फूट रही थी। हट जा इससे, शहयार की आवाज़ गूंजी। या पीछे हटा, मगर फ़ौरन दोबारा हमलावर हुआ। शहयार ने दोनों हाथ फिज़ा में बुलंद किए, एक रूहानी दायरा अंसा के गिर्द बना दिया। वो दायरा जिसमें कोई शैतानी वजूद दाखिल नहीं हो सकता था। तुम्हारे पास इस पर कोई इख्तियार नहीं। शहयार की आवाज़ में ऐसा जलाल था कि फ़िज़ा लर्ज़ उठी। एक चीख के साथ तहलील हो गया और कमरे में दोबारा सुकून फैल गया। अंसा ज़मीन पर बैठ के ही सांस उखड़ रही थी। शहयार ने झुककर इसकी तरफ देखा और कहा, अंसा, ये शैतानी ताकतें तुम्हें परेशान करेंगी, लेकिन तुम इनसे ज़्यादा ताकत रखती हो। इसे इस्तेमाल करो और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। अंसा ने लरजते हुए हाथों से उसकी तरफ देखा। आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। अगर तुम ना होते तो आज, शहयार ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं होगी अंसा, ना इस दुनिया में और ना मेरी दुनिया में। और फिर वो रात ख़त्म हुई, मगर इस लम्हे के बाद अंसा कभी पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर ईमान की रोशनी जाग उठी। सुबह की रोशनी जब अंसा के चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे वो कई सदियों बाद उठी हो। रात के तमाम मनाजिर, रोशनी, आवाज़ें और शहयार अब भी उसके जहन में गूंज रहे थे, मगर आज उसके अंदर एक सुकून था, ऐसा सुकून जो खौफ के बाद ईमान की रोशनी से पैदा होता है। उसने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिरकर अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, अगर ये सब एक इम्तिहान था तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर यह हकीकत है तो मुझे इसमें खैर अता फरमा। उसी लम्हे एक नरम सी हवा चली और कमरे में रोशनी फैल गई। अंसा ने चौंक कर सर उठाया। शहयार सामने खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में वो पुरस्रार चमक नहीं बल्कि नरमी और एहतराम था। अंसा, तुमने खौफ पर ईमान को चुना, तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया। अब हमारे दरमियान ख्वाब की दीवार है, ना हकीकत की। अंसा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आहिस्ता से बोली, शहयार, मैंने तुमसे डरना चाहा, मगर शायद मोहब्बत इससे ज़्यादा मजबूत निकली। मैं तुम्हें मानती हूँ, मगर इस शर्त पर कि हम दोनों अपने रब के ताबे रहें। शहयार मुस्कुराया। यही मैं चाहता हूँ अंसा, तुम मेरा दिल हो, तुम्हारा रब मेरा रब है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम इस दुनिया में रहो या मेरी दुनिया में। अचानक ज़मीन लरसने लगी और अंसा के सामने रोशनी का एक पुल बनने लगा। वो पुल दोनों जहानों के बीच फैलता गया, एक सिरा इंसानों की दुनिया में, दूसरा जन्नात के आलम में। शहयार ने अंसा का हाथ थामा। अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, तुम अपनी माँ के पास भी जा सकती हो, अपने अब्बू से भी मिल सकती हो, मगर याद रखो तुम दोनों जहानों के दरमियान तवाज़न की मुहाफिज हो। अंसा ने मुस्कुरा कर सर झुका दिया। अगर मेरा वजूद किसी भलाई के काम आ सकता है तो यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अंसा और शहयार एक दूसरे के करीब खड़े थे और इनके हाथों से चमक निकल कर आसमान तक पहुंच रही थी। अंसा ने महसूस किया इसके अंदर वो ताकत जाग चुकी थी जो कभी शहयार के पास थी। वो अब दोनों जहानों की तर्जुमान बन चुकी थी। जब वो अपने जिन्नाती दुनिया में पहुंची तो पूरा आलम जैसे उसके इस्तकबाल में झुक गया। हवा में ऊद की खुशबू, फ़िज़ा में जमजम की सरगोशी और दूर दूर तक रोशनी के मीनार बुलंद होते चले गए। तमाम जिन कबीले, बड़े सरदार और मुहाफिज इसके सामने सफ बस्ता खड़े थे। शहयार ने सर झुकाया और बुलंद आवाज़ में कहा, यह है अंसा जिसने खौफ को ईमान में बदला और रोशनी को दोनों जहानों में ज़िंदा रखा। आज से ये सिर्फ अंसा नहीं, जिन्नात की मालिका है। पूरा आलम एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर एक नूरानी रोशनी आसमान से उतरी और अंसा के वजूद में जज्ब हो गई। इसकी आंखों से नीला नूर फूटा, लिबास चमकने लगा और इसके गिर्द एक नूरानी हाला बन गया। अंसा ने निगाह उठाई। अब इसके चेहरे पर एक मलिका का जलाल था, मगर दिल में वही नरमी और वही मोहब्बत थी। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं वादा करती हूँ कि मेरे होने से किसी कमज़ोर को नुकसान न पहुँचेगा। मैं इंसानों और जिन्नात के दरमियान तवाज़न कायम रखूँगी, क्योंकि रोशनी जब तक कायम है, जब तक मोहब्बत ज़िंदा है।
सारे जिन नाराए जन हुए और अंसा की ताजपोशी एक मलिका की हैसियत से की गई। अब मदरसे में अंसा को अक्सर तन्हा देखा जाने लगा, मगर जब भी कोई शैतानी साया किसी पर हमला करता तो एक अनोखी रोशनी जाहिर होकर इसे रोक देती। लोग कहते यह अंसा की दुआ है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस रोशनी के पीछे शाहयार का हाथ भी है। दिन गुजरते गए, अंसा और शाहयार ने अपनी मोहब्बत को इबादत में बदल दिया। वो इंसानों की भलाई के कामों में साथ साथ रहने लगे, कहीं बीमार बच्चों के करीब एक नर्म हवा बनकर, कहीं बेसहारों के दिल में हौसला बनकर। जब भी कोई शैतानी जिन किसी इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता, अंसा और शाहयार रोशनी की दीवार बनकर उसके सामने आ खड़े होते। शाहयार अक्सर कहता, हम दो दुनियाओं के मुसाफिर हैं, मगर मंजिल एक ही है, रोशनी, जो हर इंसान और जिन की मंजिल है, जिसे कोई समझ जाता है और कोई भटक जाता है। खुदा का शुक्र है उसने हमें रोशनी के लिए चुन लिया। कहा जाता है असरार हयात उन पर खुलते हैं जो रोशनी और खुदा से इश्क करते हैं और हिम्मत और हौसले से हकीकत को अपनाते हैं। और अंसा वही रोशनी बन गई जो भटके हुओं को संवार देती है। अंसा ने जाना मोहब्बत, कुर्बानी और ईमान ही वो दरवाज़ा है जो इंसान को दुनिया और आखिरत और असरार हयात से जोड़ देता है।